Test, test, test. ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुदेवोरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पञ्चकौपतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दिल से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। एक बार जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Allereerst bied ik mijn ongelimiteerde nederige betuiging aan mijn geliefde Diksha Gurudev. Om Vishnupata Sutrasat Srispat Bhaktivedanta Bundrahaj. Ten tweede bied ik ook mijn nederige betuiging aan de genade van lotusvoeten van Nitya-lila Paramahamsa Parivacharya Patita Pavan Srila Gaura Maharaj. En ook aan de genade van lotusvoeten van Nitya-lila Paramahamsa Parivacharya Sutrasat Srimad Bhaktivedanta Narayana Vaishnava. Na alle onze guru en Rupanuga Guru Lijn. Na alle Vaishnavas, Vaishnavis en ook aan alle gerespecteerde gasten die hier aanwezig zijn met Dandavats Pranam. Vandaag zijn wij hier bij elkaar gekomen in een hele mooie huis waar twee mooie zielen wonen die de toevlucht hebben gezocht aan de lotusvoeten van Shri Guru. Wanneer Shri Guru in ons leven komt, dan is het zo dat onze leven op een hele positieve manier zal veranderen. En waarom is die verandering noodzakelijk? Omdat Krishna, Bhagwan, onze prominente persoonlijkheid is, die we centraal in ons leven horen te zetten. Maar het probleem doet zich voor dat mensen hier op aarde geboorte nemen en alle faciliteiten die de aarde, die Bhagwan aan ons gegeven heeft, van genieten. Maar uiteindelijk genieten van alles, maar we vergeten wie degene is die alles aan ons gegeven heeft. Krishna se bhule jiva anarhi bahirmukh ata eva daradeya samsara dukh. In de Shastra's wordt aangegeven dat wij als Jiva Atma in deze materiële wereld geboorte nemen, maar het probleem doet zich voor. Het eerste fout die we maken is Krishna se bhule. Dat we Bhagwan vergeten in ons dagelijkse leven. En omdat we Bhagwan vergeten dhyan te doen, zegt het vers samsara dukh. Dat is de oorzaak waarom we verdriet in deze samsara ervaren. De ooroorzaak, moekaren, is dat we Krishna se bhule jiva. Dat we Bhagwan zijn vergeten. Daarom horen we te begrijpen dat wanneer we
een voorspoedig leven, een gelukkig leven willen leiden, shant willen zijn, dan horen we te begrijpen dat we Bhagwan centraal moeten zetten, letterlijk, in ons leven. Waar we ten alle tijden in contact met hem zijn. Wat we ook doen, waar we ook zijn. Waarom? Want het wordt aangegeven, zoals ik ook gisteren in het seminar zei, dat wanneer wij het lichaam verlaten, dat gaat bij iedereen een keer gebeuren, maar wanneer we het lichaam verlaten, zegt Krishna, als diegene uitsluitend aan mij denkt, zal hij onmiddellijk mijn dham bereiken, bij het verlaten van het lichaam. Maar het is niet zo makkelijk gezegd dan gedaan. Dit vers in de Bhagavad Gita waar hij aangeeft, geef je laatste adem aan mij, is niet makkelijk. Waarom niet? Omdat wij in deze materiële wereld zo vast zijn gaan klammen aan heel veel andere zaken dan Bhagwan. Onze huis, onze familie, onze kinderen, onze bankrekening. Alles worden we gehecht aan. En omdat niet eens dat genoeg is, gaan wij nog verder proberen andere dingen erbij te halen om ons gelukkig te maken. Om ons zintuigen te bevredigen. Hoe meer we in ons leven gaan focussen en collecteren op materiële, tijdelijke situaties, hoe moeilijker het wordt om aan Bhagwan te denken in de laatste adem. Daarom wordt er gezegd dat wij ten alle tijden zoveel mogelijk dhyan moeten doen. De tijd die wij krijgen, moeten we niet verspillen. Een van ons acharya geeft aan dat wanneer weten we dat de tijd begint te tikken voor ons? Wanneer weten we dat? Wanneer die eerste grijze haren begint te komen. Wanneer die eerste grijze haren begint te komen, dan weet je, ergens gaat die tijd is voor mij aan het beperken. Het is de eerste teken. Wat doen we dan? We kleuren ons haren. We denken dat we weer jong zijn. Maar dat is schijn. Van binnen, ons lichaam, dat verandert. En het geeft teken, het is een genade. Want weet je wat het probleem is? Niemand weet wanneer de tijd zal komen dat we het lichaam gaan verlaten. Eén ding is zeker, dat we geboorte hebben genomen. Maar er is geen één zekerheid hoe lang je gaat leven. Parikshit Maharaj had het geluk dat hij vervloekt was. En dat hij te horen had gekregen dat hij 7 dagen te leven had. Stel je voor dat je weet dat je nog 7 dagen te leven hebt. Parikshit Maharaj had het geluk. De meeste mensen hebben het geluk niet. Dat gebeurt in 1 keer en klaar. Maar Parikshit Maharaj had het geluk dat hij te horen had gekregen dat hij nog maar 7 dagen te leven had. En wat deed hij? In die 7 dagen die hij nog gekregen had, hoe had hij daarover te gaan? En heel veel mensen zouden zeggen, ik heb maar 7 dagen, hoe erg is dat? Maar hij was heel blij. Hij was de koning van alles. Had alle bezittingen. Parikshit Maharaj had heel veel bezittingen. En hij had een hele hoge positie. Een grote koninkrijk die hij had. Wat deed hij? Heel veel mensen zouden zeggen, ik ga nog voor mijn geld genieten, ik ga dit doen, ik ga dat doen, ik ga dit doen. Maar nee, Parikshit Maharaj had tiaag gedaan. Hij had alles opzij geschoven. En 7 dagen en nachten is hij naar zijn guru gegaan, Sukadeva Goswami. En 7 dagen en nachten heeft hij Harikatha geluisterd. Harikatha. Door deze Harikatha te luisteren, heeft hij einde van het leven, deze Antakarayucha Mamekam Smaram Mukta Kalevram, heeft hij bereikt. Laatste adem heeft hij aan Bhagwan kunnen geven en hij is in Bhagwan's dham terechtgekomen. Maar zonder deze praktisering, zonder deze toewijding,
is het niet mogelijk om aan Bhagwan Dham zo makkelijk te komen. Daarom wordt er gezegd, Nitya Siddha, Krishna Prem, Sadhya Kabhinai. Sravan Adi Sudha Chitte Karaya Udhaya. Er wordt aangegeven dat deze Nitya Siddha, wij hebben in ons hart denken we, waar zijn we op zoek naar? We zijn op zoek naar liefde. En deze liefde uiten we aan met ons naaste, of iedereen die van ons houdt. Maar deze liefde is geen liefde. Het is een voorwaardelijke liefde. Wij denken dat mensen van ons houden, vaak. Maar ze houden van onze, wie we zijn en wat we gecollecteerd hebben, vaak. Voorwaarden. Als jij mij dit en dit en dit kan bieden, dan zal ik er ook voor zijn. En als dat weg is, dan weet ik niet of ik er moet zijn. Op voorwaarden gezegd. Daarom wordt er gezegd dat wij deze eeuwige, niet zien, dat betekent dat wij een eeuwige constitutionele karakteristieke waarde hebben. Ja, dat is een moeilijke woord, maar wat ik probeer te zeggen is dat wij van nature liefde hebben, die potentie om van Bhagwan, bhakti te ontwikkelen, te houden van. Iedereen heeft dat in zich. Alleen die potentie wordt niet benut. Het wordt benut op andere mensen. Maar die potentie van liefde moet gericht worden op Bhagwan. Dan pas zullen we werkelijk shant en gelukkig worden. En er wordt gezegd, deze liefde gaat niet zomaar. Sadhya kabinoi. Maakt niet uit wat je doet. Het zal nooit ontwikkeld worden wanneer Sravan Adi. Wanneer we in Guru Pada Ashray komen. Guru Pada Ashray. Wanneer we de lotusvoeten van een guru daar respect geven. En vanuit een guru Sravan doen, Harikatha gaan luisteren. Door deze Harikatha te luisteren, Suddha Chitte. Onze werkelijke vorm, onze werkelijke relatie met Bhagwan, zal onthuld worden. Karaya Udhaya. Betekent dat we ook uit deze samsara verlossing gaan krijgen. Door alleen maar te luisteren naar een sadhu. Met heel veel devotie en heel veel toewijding. Daarom geven we ook zoveel nadruk. Daarom organiseren we dit soort programma's. En waarom? Omdat we alle jiva's graag verlossing willen geven. Wanneer we dan ook in zulke satsang komen, dan zullen we zien hoe wij ook aangetrokken kunnen raken tot Bhagwan. Kijk naar die kinderen hier. We hebben vandaag alleen maar van de kinderen voornamelijk bhajan gehoord. Hoe denk je dat die kinderen die bhajan allemaal hebben geleerd hebben? Denk je dat het zomaar is gekomen dat ze bhajans kunnen leren en zo tot guru, een Sri Guru zijn gekomen? Het heeft alles te maken met Purvajanam, Sukriti. Al deze kinderen hebben voorgaande levens Harikatha moeten luisteren. Deze Sravan Adi gedaan. Door Sravan Adi te doen, zal je een ideale geboorte kunnen nemen waar je sinds kleins een onderricht krijgt hoe je tot Bhagwan kan komen. En er is een grote kans dat deze kinderen hun laatste leven kunnen zijn en dat ze hier dan naar Bhagwan Dham kunnen komen. Want het zal van kleins af al op het pad van bhakti komen. Dit is de genade wat Bhagwan aan ons geeft. Wanneer iemand tot een guru komt, garandeert, als we luisteren, als we zijn instructies volgen, serieus zijn, dat we een goede geboorte gaan krijgen en die geboorte kan onze laatste geboorte zijn. En zo kunnen we Bhagwan Dham bereiken. Anders, volgens ons karma, zullen we miljoenen levens hier op aarde terug moeten komen om al onze karma, bhok, punya en paap, we zullen dat allemaal moeten krijgen. Miljoenen levens. Maar door alleen maar tot Gurudeel te komen, hoeven we maar misschien in dit leven zelfs kunnen we Bhagwan Dham bereiken. Oké, laat het dan nog een leven hierna zijn. Maar wat is 2 levens, 3 levens nog ten opzichte van miljoenen levens dat we terug moeten komen hier en geboorte, ouderdom, ziekte en dood moeten meemaken. Daarom, lieve mensen, moeten we begrijpen dat we vertuinlijk zijn als we in zo'n satsang komen over dit soort onderwerpen te bespreken.
waar een Gurudev is, waar Bhajan Krishna's centraal staat, mooie altaar daar, waar bhaktas wonen, toegewijders wonen. Dit zijn niet zomaar inwoners van Suriname, dit zijn toegewijders die hier wonen. Waarom zeg ik dat? Omdat ze weten wat het doel van het leven is. En door hun nodigen ze andere mensen uit die er profijt van kunnen krijgen. Ze zijn niet egoïstisch door te zeggen, ik wil alleen maar mijn eigen bevrijding krijgen. Maar ze zorgen allemaal voor hun dierbaren. Van kom, luister en doe je eigen voordeel. Dat is de genade van het toegewijde. Daarom wordt er gezegd, wanneer één toegewijde in de buurt woont, de hele wijk kan er profijt van hebben. Alleen maar één toegewijde daar in de buurt. De hele wijk kan er profijt van hebben. Dit is de reglement. En daarom moeten we proberen deze gelegenheid serieus te nemen. Wanneer we de gelegenheid hebben om Harikatha te luisteren, moeten we kans grijpen. En dat is de enige redding. Ik dank u zeer. Want je kan op het droog stand up नहीं है क्या स्टैंड इसके हाथ से पकड़ना पड़ेगा माइक ठीक चल रहा हाँ ठीक चल रहा इसके ऊपर रख दो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो Take the table, yeah? You put chair on Take the table. no, not the table. Put it on top of that table. You Shorter table. Can we just open? Yeah. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ॐ वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियावै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः भक्तावीणापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज श्री गुरुगोविंद गोस्वामी महाराज
एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव मातृवृंद, गौरगत सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। कितना समय? How long to speak? So, just I want to speak few words to you. कौन-सा श्लोक है? तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कहने लगे कि महाराज परीक्षित सुनो, इस जग में दुर्दिन कौन सा दिन है या सुदिन कौन सा है? दुर्दिन समझते हो? माने जिस दिन अच्छा नहीं उसको दुर्दिन कहते हैं। और सुदिन किसको कहा जाता है? जिस दिन अच्छा। दुर्दिन इस संसार में लोगों के लिए कहा जाता है जैसे अधिक बारिश हो, लगातार झम 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 बारिश होते रहे, 24 घंटे कभी भी होता ही था। इंडिया में कभी कभी जो है लगातार बारिश होते, 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन तक बिल्कुल बंद ही नहीं होता। घर में बैठना ही पड़ता है, बाहर आप जा नहीं सकते। इधर होता है कभी नहीं, बंद हो जाता है। इंडिया में कभी कभी ऐसे लगातार बारिश होता है 5-6 दिन तक, 7 दिन तक आप बाहर नहीं जा सकते, झम 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 बारिश होती है। दुकान आप खोल नहीं सकते, व्यवसाय वाणिज्य नहीं होता है, स्कूल कॉलेज क्या होता है, सब बंद हो जाता है, कोई काम ही नहीं। तो उस दिन को हम लोग क्या दिन कहते हैं? क्या दिन कहते हैं? दुर्दिन कहते हैं। दुर्दिन, क्योंकि हमें धन संपत्ति नहीं आ रही है। दुकान खोले, खरीदार आ जाए तब तो कुछ पैसा होगा। मैंने कहा ना, इंडिया में क्या कहते हैं? दुकान मेरा देवता, मंदिर है, घर मेरा मंदिर नहीं है। दुकान मेरा क्या है? मंदिर है। हाँ। और देवता कौन है? हाँ? खरीदवार, जो खरीदने कहते हैं वो मेरा देवता है। हाँ? बस। क्योंकि जब दुकान नहीं खोले तो मंदिर नहीं खोला तो खरीदार कहाँ से आएगा? है? देवता कहाँ से आएगा? मंदिर केवल बंद ही रहे, है? कैसे काम चलेगा? तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, इस संसार में लोग दुर्दिन उसे कहा जाता है। तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये। जिस दिन हमारे कोई धन पानी नहीं होता, व्यवसाय वाणिज्य नहीं होता, अर्थ नहीं आता, उसके दुर्दिन कहा जाता है। और सुदिन किसको कहा जाता है? अच्छे दिन किसको कहते हैं? और इट गुड डे, जिस दिन देवता लोग आ जाते हैं हमारी दुकान पर। समझे? देवता लोग जब जिस दिन दुकान पर मेरे पैसा होता है। किंतु परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी पाद के नहीं, ये दुर्दिन और सुदिन की सुदिन के परिभाषा सुनो। तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये, वह दिन दुर्दिन है जिस दिन हम लोग भगवान की अमृतमय कथा से वंचित हो जाते हैं। जिस दिन हम लोग भगवत कथा नहीं सुनते, वो दिन क्या है? क्या बोला? दुर्दिन। और जिस दिन संत महात्मा गृह में पधारते हैं, हरि कथा होती है,
भक्ति की अनुशीलन होती है? वह दिन क्या है? सुदीन है। इसलिए श्रीमद् भागवत में दुर्दिन और सुदीन के बारे में डेफिनेशन दे रहे हैं। सांसारिक लोग के दुर्दिन और सुदीन, और भक्त के लिए दुर्दिन और सुदीन की अंतर है। ये समझना है, इसका पहले समझे। क्योंकि हम जिस समय भगवान की कथा नहीं श्रवण करते हैं, भक्ति के अनुशीलन नहीं करते हैं, वो माया आकर के हमें पकड़ लेती है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद इसी के उदाहरण दे रहे हैं कंटिन्यू। जिस प्रकार बरसात में रेनी सीजन और वर्षा होने के क्या होता है, सबसे आनंद किसके होता है जानते हो क्या? बताओ। है सबसे बरसात काल में सबसे आनंद होता है मेढक, जथा दुर्दु में, वो संस्कृत में दुर्द कहा जाता है मेढक, है फ्रॉग। बोले जब अधिक बारिश होती है बरसात के समय, मेढक क्या करता है? टट 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 करता है। देखा ना, है जितना जोर झम 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 वर्षा होगी, बारिश होगी, और मेढक के आनंद होता है। विशेष करके गर्मी के बाद बरसात ऋतु आने के साथ ही साथ जब बारिश होती है, और उस समय सबसे आनंद किसको होता है? क्या होता है? मेढक। मेढक समझते हो? फ्रॉग है। वो इतने तालाब आदि जब भर जाता है, पोखर आदि, तालाब आदि, नदी नाला आदि जब भर जाता है, वो क्या करता है? आनंद से उछलता है। इस श्रीमद् भागवत की कथा है, मैं ग्राम कथा नहीं बोल रहा हूँ, तो भागवत में श्लोक है। और इतने वो से आनंद होता है, बस वो क्या करता है? शब्द करता है। क्या शब्द करता है? कीर्तन करता है। आज हमारे घर में आनंद हो रहा है, इसलिए आनंद वो कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। तो वो जब ट्रैक्टर जब करता है, धा 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 करते रहते हैं एक साथ में। 10, 20, 50, 60, 70, 100 जो है मेढक एक ही साथ में, एक ही ताल में वो टा 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 टा। और उस समय क्या होता है? सांप आकर के उनको क्या करता है? खा जाता है, खा जाता है, मृत्यु हो जाता है। तात्पर्य क्या बता रहे हैं? ये वह दुर्दिन है जिस दिन हम लोग भगवान की कथा से वंचित हो जाए। इस समय भगवान की कथा सुनते नहीं, क्योंकि जीवन की तात्पर्य क्या है? आत्मा की वृत्ति है, स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ द सोल। आत्मा की वृत्ति क्या है? भगवत कथा श्रवण, और कुछ नहीं है। जिस दिन हम लोग भगवत कथा से वंचित हो जाते हैं, भगवत कथा सुनते नहीं हैं, उस दिन हमारे मन कहां चला जाता है? माया की तरफ चला जाता है। और वही माया क्या करती है? मेढक रूपी काल सांप, वो हमें क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। इसलिए काल रूपी सर्प हमें पकड़ लेते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद करें महाराज परिचित, दुर्दिन वह दुर्दिन है जिस दिन हम लोग संत महात्मा के संग से वंचित हो जाते हैं, जिस दिन संत महात्मा के मुखारविंद से हम लोग हरि कथा श्रवण नहीं करते। और उसी समय माया रूपी काल रूपी सर्प समझते, स्नेक आकर के क्या करते हैं? हमें दंशन करते हैं, डांस देते हैं, और विषय रूपी विष की ज्वाला से हम छटपटाते हैं। ये संसार की विषय कहते हैं, विषय नहीं है, ये क्या है? विष है, जहर कहा जाता है। ऊपर से अच्छी लगते हैं सब कुछ, किंतु वास्तव रूप में ये
दुखमय है? इसलिए उपनिषद में कहते हैं परीक्षा लोकानो ईमानो, इस संसार दुखमय है कि सुखमय है, इसको भली भांति अनुभव करें। अभी हमें संसार के सब वस्तु क्या लगते हैं? क्या लगते हैं तुम्हें? अच्छी लगते हैं ना? है? क्या अच्छी लगते हैं? घर अच्छा है? मकान यदि बहुत सुंदर हो, गाड़ी हो, है? घर की सभी हमारे पति पत्नी आदि से लेकर बाल बच्चा जब हमारे अनुकूल होता है, वो गृह मुझे क्या लगता है? अच्छा लगता है? और यदि वो वस्तु यदि हमारे प्रतिकूल हो, घर अच्छा नहीं है, गाड़ी ठीक नहीं है, और गाड़ी है ही नहीं तो ठीक कहां से हो? है? तो अब वो गृह कैसे लगते हैं? दुखदायी होता है। क्योंकि बद्ध जीव इस संसार की वस्तु के सुख मान सुख के लिए कर्म आदि करते रहते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पद फिर कह रहे हैं, कर्मण्योपि आरोमाणानाम दुख होतई सुखाय च पश्चित पाक विपर्य मिथुनोचारणनाम। हे राजन परीक्षित महाराज सुनो, इस संसार के लोग कर्म किस लिए करते हैं? आप बताओ, कर्म किस लिए करते हो? काम किस लिए करते हो? दुकान करते हो, बस जो भी काम करते हो, जिसको जैसे अपने अपने अधिकार के अनुसार, योग्यता के अनुसार जो काम करते हैं, ये काम करने के उद्देश्य क्या है? क्या चीज, क्या काम करते, किस लिए काम करते हो? क्या, किसके लिए? अर्थ के लिए, हमें सुख प्राप्ति, अर्थ के लिए है। इसलिए कहते हैं कर्मण्यो भी आरोहमानम दुख होती सुखाय चो, दुख दूर करने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। इसके श्लोक में स्पष्टीकरण कर रहे हैं, कर्मण्योपि आरोहमानम दुख होते सुखाय चो। संसार के लोग जो कर्म आदि करते हैं किस लिए? वो दुखी है, और वो दुख के दूर करने के लिए, नाश करने के लिए कर्म करते हैं। इसलिए कर्मण्योपि आरोहमानम दुख होती सुखाय चो। क्यों? हम यदि कर्म नहीं करें, हमें अर्थ प्राप्ति नहीं हुआ, और अर्थ यदि नहीं मिले तो हमारे सुख प्राप्ति नहीं हुआ। इसलिए सभी कर्म करते हैं अर्थ प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए करते के लिए। आप नौकरी करते हो, किस लिए नौकरी करते? पैसा के लिए। पैसा किस लिए कमाते हो? सुख के लिए, किसी न किसी प्रकार सुख के लिए, और कोई कारण नहीं। दैहिक सुख हो, मानसिक सुख हो, पति पुत्र परिवार को पालन करने के लिए हमें धन की जरूरत होता है। तो धन कमाने के लिए हम क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कर्म दुख होती सुखाय। दुख नाश हो और सुख प्राप्ति हो, ये हमारे उद्देश्य रहता है। भागवत की एक एक श्लोक के पढ़ो तो आपको इतने आनंद आएगा और इतने डूब जाओगे भाव में, क्या बताऊं। इसलिए कह रहे कर्मण्योपि आरोहमानम दुख होते सुखाय च पश्चित पाक विपर्जनित मिथुनोचारणनाम। हे राजन, किंतु इसमें क्या होता है? विपरीत फल हमें प्राप्ति होता है। ऑपोजिट रिजल्ट हमें आता है। सुख के लिए हम कर्म कर रहे हैं, अर्थ के लिए, किंतु आ जाता है क्या? दुख आ जाता है। परिश्रम करते करते हम इतने थक जाते हैं, अंत में जो सुख मिलता है वो सामान्य रूप में सुख मिलता है। जैसे उदाहरण देते हैं, गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, जैसे एक व्यक्ति पहाड़ को खोद रहे थे। पहाड़ समझते हो? पहाड़ के खोदते 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 सोचा जो यहाँ पर बहुत कुछ मिल जाएगा, सोना दाना आदि मिल जाएगा। किंतु पहाड़ के खोदते खोदते उसको क्या चीज मिला? बोले छोटा सा एक चूहा मिल गया, वाह मेढक मिला।
कोई काम करें। ठीक उसी प्रकार इस संसार में हम सुख के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, किंतु अंतिम में हमें क्या मिल रहा है? दुख ही मिल रहा है। ये कहते दुख होती सुख पश्चात पाको विपर्जनीना। क्यों? क्योंकि हम सुख कहाँ है उसके तरफ हम नहीं जा रहे हैं। जो कार्य करने से सुख प्राप्ति होगा है वो हमें पता ही नहीं है। इसको आपकी अच्छी तरह समझो। यही भागवत में इसके कहते उसी कथा को चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद के श्रवण कराया। चैतन्य चरितामृत में ये संसार के लोग वास्तव रूप में जानते नहीं है सुख हमें कैसे मिले और कहां मिले, कैसे मिले और कहां मिले। आज समझ देखो इस कथा को आगे एक छोटा कथा सुना देता हूं। हमारे ब्रज में एक मुसलमान कवि रसखान के नाम सुना आप लोगों? बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने ब्रज की जो है सवैया जो लिखा राधा कृष्ण के ऊपर। मुसलमान थे किंतु देखो बहुत ब्रज के प्रति प्रीति रखता था और ब्रज के सारे राधा कृष्ण के ऊपर ही उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जैसे वृंदावन की जाओगे कहते वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डालर पात पात में राधे राधे होई, राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोहि दियो वृंदावन को वास। इस अपेक्षा से अनेक बहुत सुंदर सुंदर सवैया लिखा उन्होंने राधा कृष्ण पर बहुत सुंदर सुंदर। कभी समय हो तो बताइए। थोड़ा सा इस प्रसंग में इसलिए कहते जा रहा हूं। एक बार ये रसखान जो है एक पान की दुकान पर गए। पान चिबाते हैं ना, पान की दुकान पर रास्ता की किनारे रास्ते की कोने में एक पान की दुकान था है? भाई इंडिया में क्या करते हैं वो पान की दुकान में जो पान खरीदता है पान चिबा करके क्या करते हैं फिर उसी पर थूकता रहता है। आप लोग पान चिबाया कभी? नहीं जानते हो? कोई पान नहीं खाते हो? बहुत अच्छी बात है। भाई इंडिया में जाओगे हर स्ट्रीट की कोने के क्या बोले कोने में जरूर आपको जो दो चार जो है पान की दुकान मिलेगा। मथुरा वृंदावन में चले जाना, मथुरा में तो और हमारे मंदिर की सेल दिखाई पड़े पान की दुकान दिखा। तो रसखान ने क्या की एक पान की दुकान में है तो देखा पान खरीदने के लिए गए और उस दुकानदार के जो है पान की दुकान में एक सुंदर चित्रपट रखा था ठाकुर जी का, बाल गोपाल का है ना चित्रपट रखा। देखे होंगे सर छोटा बाल गोपाल जो है कृष्ण जो है ऐसे पैर के छोटे छोटे पैर को ऐसे करके बैठे हुए थे। अब देख रहे मंद मुस्कान करते हुए। रसखान ने वही पान खरीदना छोड़ दिया, केवल आंख लगा करके टकटका लगा करके वो ठाकुर जी के चित्रपट को देखने लगी। भाई देखो कब किसके हृदय में भाव कैसे उदित हो जाए कौन बता सके। समझ में आ रही है मेरे भाई? कब किसके हृदय में कौन सा भाव उदित हो जाए कौन बता रहे। देखो रसखान ठाकुर जी के दर्शन करने लगे चित्रपट के दुकान पर जो चित्रपट लगा हुआ था ना देखिए हाँ कैसे सुंदर बाल गोपाल है नंगे पैर में बैठे हुए थे, पैर में कोई जूता फूटा नहीं। और देख करके वो रसखान वो पान बेचने वाला है ना पान वाला की कहने लगे अरे तुम्हारे ठाकुर की चरण में जूता क्यों नहीं रखा? जूता पहना।
देखो उनके मन की भावना हुई है। कभी कभी हम ठाकुर जी के दर्शन करते 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 मन में भावना होता है ठाकुर जी कैसे सुंदर है, और ठाकुर जी के चरण में जूता नहीं, हम जूता पहन करके चलते हैं है? किंतु देखो ये ठाकुर जी के चरण में जूता नहीं। वो पान वाला के बोले अरे ठाकुर जी के तो थोड़ा जूता तो पहनाओ। पान वाला बोले जा जा, तू कहां से पागल आ गया है, जा जा आगे बढ़। किंतु रसखान जानी ना जानी ठाकुर जी के दर्शन करते करते भाव में इतने विभोर हो गए है, उनके हृदय द्रवित तो हो गया, आंखों से आंसू की धारा जो टपकने लगी है। रसखान कहने लगे अरे तुम्हें ठाकुर जी के तो जूता तो पहनाओ। 2 बार 4 बार वो पान वाला कहने जा तू जा, तो रसखान कहा अच्छा मैं लाता हूं। भाई देखो सचमुच रसखान उस स्थान को छोड़ करके आगे गए, एक जूती की दुकान था, छोटा छोटा जूता ठाकुर जी के नाम से जमाना 1.5 इंची जो है जूता खरीद करके लाए। देखो कितने भावना, हम भगवान के दर्शन करते हैं ये भावना हमारे हृदय में नहीं होता है, किंतु देखो रसखान ठाकुर जी के दर्शन करके भाव में डूब गए और सचमुच जो निकट में दुकान में चले गए, जूते की दुकान से छोटे छोटे जूता खरीद करके लाया और पान वाला के बोले ये ठाकुर जी के पहनाओ। है जा, फिर कहां से आ गया, पागल है क्या है? भाई उसके तो भगा दिया, किंतु उनके मन की इतना भावना होने लगे ये आज मैं ठाकुर जी के जो है जूता जरूर पहनाऊंगा, ये भावना हो रही है। कितना सुंदर भाव देखो है, ठाकुर जी के दर्शन करने के साथ ही साथ इतने सुंदर मधुर भाव प्रेम भाव उदित हो गए है ठाकुर जी के जूता है। उस पान की दुकान छोड़ करके आगे गए, लोगों के पूछने लगे है अच्छा बताओ ये ठाकुर जी कहाँ मिलेगा है? उसमें सबाई में सबाई कहते ना, उसमें लिखा है ये ठाकुर जी तुम कहाँ मिले है? देखो लोगों के पूछने लगे, बोले देखो ठाकुर जी कहाँ मिलेगा। लोग हंसने लगे ये पागल है? लोग उनको बात ही नहीं की। देखो और आगे चलने लगे, इतने समय साक्षात ठाकुर जी है एक साधारण व्यक्ति के भांति खड़े हो गए। रसखान उसके पूछने लगे है अच्छा बताओ ठाकुर जी कहाँ? रसखान पादुका लेके चले है। उस सबाइयों में कह रहे हैं रसखान क्या करे, पादुका लेकर चले। और उसी समय उसके पूछने लगे अच्छा तू बताओ ठाकुर जी कहाँ मिले? स्वयं भगवान को पूछ रहे कौन? रसखान। और ठाकुर जी कहने लगे जाओ वृंदावन में तुम्हें मिल जाएगा है। रसखान पादुका लेकर के वृंदावन चले और रसखान चलते चलते वृंदावन पहुंच गए। देखो कितने भावना, छोटे छोटे जूती है ना लेकर के चल पड़े। वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन में मंदिर देखा, अनेकों मंदिर देखा, किंतु उस समय शाम के समय हो गया था और कुछ मंदिर तो बंद ही हो गया है, पट तो खुले ही नहीं। रसखान विचार करने लगे आज ठाकुर जी के चरण में जरूर मैं ये जूती क्या है ये भावना। चलते चलते फिर ठाकुर जी के कहने लगे ठाकुर जी तुम कहाँ मिले
रसखान पादुका लेकर चले। ठाकुर जी तुम कहां मिले? देखो साक्षात कृष्ण है। फिर दोबारा आगे उनके पास आकर के बोले देखो ये निकट में मंदिर है, ये मंदिर आगे खोला हुआ है, इसमें चले जाओ। रसखान वो छोटे छोटे जूते हो लेकर के चल पड़े। मंदिर में जा रहे थे, इतने समय पुजारी उसको रोक दिया है। एक तो विधर्मी है, मुसलमान है, और फिर हाथ में जूते लेकर के चल रहे। हमारे हिंदू धर्म में लिखा ठाकुर जी के मंदिर में जूता नहीं लेना चाहिए। तू कहां तेरा? पुजारी उसको डांट दिया जाने। किंतु देखो रसखान कहने लगे पुजारी तुम मुझे जाने दो, मुझे एक विशेष काम है। रसखान कहने लगे पुजारी मुझे रोको मत, मुझे मंदिर में जाने दो, मेरा विशेष एक काम है। किंतु पुजारी ने क्या कि उसको डट फटका करके भगा दिया। किंतु देखो रसखान सीढ़ी से नीचे तो ऊपर से नीचे तो आ गए। पुजारी ठाकुर जी के पूजा करके मैंने आरती करके वो बंद करके चले गए। रसखान मानी मन विचार करने लगे आज जब तक ठाकुर जी के जूता नहीं पहनाऊं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। देखो रसखान उसी मंदिर के सीढ़ी के नीचे वही जूता लेकर के बैठे रहे। भावना इतने मधुर है, आज जरूर मैं ठाकुर जी के चरण में पादुका जूता मैं पहने करके तब जाऊं। बैठे हुए थे, ऐसे करते करते 10 बज गया, 11 बज गया, 12, 1 बज गया, आधी रात हो गई। सभी लोग चले गए। एकांत में रसखान उस मंदिर के नीचे जो सीढ़ी है ना वहां पर बैठे। और इतने समय ठाकुर देखा क्या? ठाकुर जी देखा मेरे परम भक्त मुझे मेरे सेवा के लिए इतने उत्कंठा प्रकाश कर रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, इनको सेवा तो मुझे ग्रहण करना ही है, लेना है। और ठाकुर जी शब्द करने झनक झनक झनक। ठाकुर जी के चरण कमल में क्या रहता है? नुपुर है ना, नुपुर के झिन 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 शब्द बने। देखो रसखान पीछे तरफ देखा, बाएं देखा, दाएं देखा तो कुछ है ही नहीं। कौन? कुछ समय के बाद देखा क्या, एक बालक उनके पास खड़े हो गए। रसखान कहने लगे ठाकुर जी आ गए, ये जूता पहन। देखो किंतु ठाकुर जी तो बहुत वृंदावन के ठाकुर जी है ना, है? कितने साल होता है वृंदावन के ठाकुर जी? वृंदावन के ठाकुर जी होता है कोई ईश्वर कहा जाता है। और वो रसखान जूता कितना लाया? छोटा है। वो ठाकुर जी कैसे पहनेंगे? छोटा है। अच्छा बड़ा है तो कैसे तो कुछ घुसा दो, छोटा थोड़ी घुसेगा है? देखो ठाकुर जी के जूता पहनने के लिए जब जा रहे थे, इतने समय रसखान देखा ठाकुर जी की पैर में वो पड़ गया, फफोला पड़ गया, ब्लिस्टर पड़ गया, बिल्कुल लाल लाल हो गए, खून से लथपथ हो रहा ठाकुर जी के चरण कमल। रसखान रो पड़े। रसखान कहने लगे ठाकुर जी आपके चरण में ऐसे कैसे हो गया है? ब्लिस्टर समझ लो, ऐसे ऐसे फफोला पड़ गई और खून निकल रहा। ठाकुर जी कहने लगे ये देखो मैं चल करके आ रही हूं ना, इसलिए मेरे पैर में
फफला पड़ गए और बोले ठाकुर जी केवल 2 कदम नीचे से ऊपर से नीचे उतरने में, सीढ़ी से उतरने से फफला पड़ गए। ठाकुर जी कहने लगे नहीं नहीं रस खान, मैं बहुत दूर से चल करके आ रहा हूँ। कहाँ से चल करके आ रहे हो ठाकुर जी? करे मैं ठाकुर जी मैं गोकुल से चल करके आ रहा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। है क्यों? तुम तो लया मेरा छोटा, तो मैं गोकुल में मेरा कौन स्वरूप है? गोकुल में ठाकुर जी रहते हैं, वो बाल स्वरूप में रहता है, बाल गोपाल है ना, बाल स्वरूप में रहता है। इसलिए तुम्हारे जूता पहनने के लिए मैं खाली पैर में कहां से आ रहा हूं? गोकुल से आ रहा हूं। गोकुल गए कोई आप लोग? देखा आपने? कहां देखा है? नंद गोकुल नहीं गए आप लोग? है गोकुल जाना चाहिए, इतने सुंदर स्थान है वो, है बहुत सुंदर ठाकुर जी की स्थान है गोकुल। इसलिए ठाकुर जी कह रहे मैं गोकुल से मैं चल करके आ रहा हूं। बोले चलते चलते मेरे पैर में फफला पड़ गया है। तात्पर्य क्या है? हम भगवान के जिस स्वरूप में सेवा करना चाहते हैं, भगवान उसी स्वरूप में मेरे पास आते हैं, उस सेवा ग्रहण करना चाहते हैं। बोलो वृंदावन है। हम कथा को समाप्त करते हैं। मेरे कहने की ये तात्पर्य है, हम जानते नहीं हैं कहां पर सुख है, सुख कैसे प्राप्ति हो। बोले सब सुख कहां मिले? बोले गोविंद की भजन में सुख है, गोविंद की सेवा में सुख है। जब हम गोविंद की सेवा नहीं करेंगे, हम सुख प्राप्ति नहीं कर सकते। मैंने कहा था कर्मण्योपि आरो मनानाम दुख होते सुखाय च पश्चात पाको विपर्य मिथुन चारणि नाम। इस संसार में जितने हम करते हैं ये दुखदायी है। सारे खून आपके चूस लेंगे, किंतु कोई आपके प्रति आभारी प्रकाश नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं है। ऊपर से थोड़ा बहुत मीठी बात कर दे, किंतु वास्तव रूप में नहीं है। वास्तव सुख शांति किस में है? किस में है? गोविंद भजन में, गोविंद के नाम में, गोविंद की कथा में और गोविंद की सेवा में। जब हम गोविंद की सेवा नहीं करेंगे, हम इस संसार यानी माया में हम पड़ जाते हैं, माया में कष्ट होता है। कहने की तात्पर्य क्या किसने कहा था? ये हम जानते नहीं सुख कहां पर है। इसलिए वेदांत सूत्र में कहा जाता है आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात। भगवान आनंद स्वरूप है। उस आनंद की जिस सेवा हम करें, तब हमें क्या मिलेगा? आनंद सुख है। और दुख की हम सेवा करें, दुख ही मिलेगा। ये संसार क्या है? दुखालय शाश्वतम। गीता में कहा ना, दुखालय शाश्वतम। दुख की आलय, आलय माने गृह है, दुख की आलय है। कहा आलय समझते हो? आलय माने भंडार व गृह कहा जाता है। तो कोई दुख रूपी गृह की सेवा करे, उसके सुख कहां प्राप्ति होगा? इसलिए कहा जाता है किसको सेवा करनी चाहिए? आनंदमय अभ्यासात, आनंद स्वरूप भगवान की हम सेवा करेंगे। ये भगवान की सबसे सेवा क्या है? पहले भगवान की कथा मृत्यु के श्रवण करो। इस कथा जो भगवान की कथा जो श्रवण करते हैं ना, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान की जितने प्रकार की सेवाएं हैं, भगवान कहते हैं जो मेरा कथा सुनते हैं ना, मैं उनके लिए क्या दूं मुझे पता ही नहीं चलता है। यहां तक भी नहीं, स्वयं भगवान भी अपना कथा सुनने के लिए भी स्वयं क्या कहते हैं? तरसते हैं। जैसे जगन्नाथ जी की मूर्ति देखा आप लोग ने? क्या देखा? जगन्नाथ जी कैसे है? कितने हाथ कितने पैर है? बता, जगन्नाथ जी के कितने हाथ है? हाउ मेनी हैंड्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ? हैं? तू बोले क्या? नो हैंड्स।
कितने पैर है? No feet. जगन्नाथ जी के हाथ पैर कहाँ चला गया है? देखो इसमें मैं कह रहा हूं जगन्नाथ जी स्वयं भगवान कृष्ण है? अपने की कथा सुनते सुनते उनके क्या हो गया? उनके हाथ और पैर जिद सब कुछ क्या हो गया? क्या हो गया? द्रवीभूत है, मेल्टेड हो गया। जगन्नाथ जी की कथा सुनते ना है? जगन्नाथ जी की कथा सुना कि नहीं सुना? जगन्नाथपुरी गए कि नहीं? ये बात बताओ पहले है? गई आप है? तो जगन्नाथ जी के ऐसे स्वरूप कैसे? उसके हाथ ही नहीं है, पैर नहीं है, डायबिटेड फॉर्म है, केवल आंख दूर बड़ी बड़ी चखाना है, आंख दिखाई दे, कैसे हो गया? बोले स्वयं जगन्नाथ बलदेव जो है, मां रोहिणी देवी जब सुधर्म सभा में कथा सुनाने लगे महिषियों के, हैं? देखो उस समय स्वयं कृष्ण बलराम सब कुछ काम छोड़ करके वहीं पर आ गए। और विशेष करके बलराम की मां रोहिणी देवी जब गोपियों की कथा सुना, विरह की कथा सुना है, और कृष्ण बलराम वहीं पर आकर के बस बैठे रहे, किसी के पता ही नहीं चला। और वही ब्रज की कथा सुनते सुनते कृष्ण के क्या हो गया? सारे अंग क्या हो गया? द्रवीभूत हो गया, मेल्टेड है। मेरे कहने की तात्पर्य स्वयं भगवान भी अपना कथा सुनने के लिए इतने तरसते हैं। भगवान के यही धर्म है, जहां पर कथा होगी भगवान स्वयं प्रकट हो जाता है। गीता आलोचना करो, देखिए स्वयं भगवान यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। गीता महात्म्य में लिखा है, गीता महात्म्य पढ़ो, द ग्लोरीज ऑफ भागवत गीता। गीता में क्या लिखा है महात्म्य में? जत्र गीता विचारश्च पठनम पठनम तथा मोदते श्री कृष्ण भगवान श्री राधाया सह। गीता महात्म्य में लिखा है पति। जत्र गीता विचारश्च, जहां पर गीता की कथा होती है, आलोचना होती है। जत्र गीता विचारश्च पठनम पठनम तथा, कोई पाठ करते हैं, बस सुनाते हैं। बोले स्वयं भगवान श्री हरि है राधा जी के साथ प्रकट हो जाते हैं। क्यों? अपनी कथा सुनने के लिए। हम इसलिए कर रहे हैं, भगवान की कथा इतने मधुर है, स्वयं भगवान भी अपनी कथा सुनने के लिए तरसते हैं। भगवत कथा में क्या है? भगवान की ग्लोरिफिकेशन है। आपके ग्लोरिफिकेशन मैं करूं, आपके थोड़ा क्या होगा? लज्जा बहुत होगा, माननीय महाराज है मेरे ग्लोरिफिकेशन मत करो। आप कहोगे नहीं करोगे ना, सुनोगे महाराज बोलो 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 मेरे है। किंतु देखो स्वयं भगवान की कथा माने स्वयं भगवती ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड, भगवत कथा है। और जहां पर भगवत कथा होती है और स्वयं भगवान वहीं पर क्या होते हैं? विराजमान होते हैं। किस लिए? कथा सुनने के लिए। इसे तो गोपियां कह रही है ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडितम कालमसाहपम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडितम कालमसाहपम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपी गीत में लिखा, स्वयं गोपियां रोते रोते गोविंद की खोज कर रही है, कीर्तन कर रही है। ये कथा जो है, ये श्लोक किसने गाया? स्वयं राधा जी है। ये राधा जी जो है इसी पर कीर्तन किया। तब कथामृतम, हे गोविंद आपकी कथा कैसे है? अमृत स्वरूप है। जिस प्रकार अमृत पान करने से अमर बन जाता है, ठीक उसी प्रकार आपकी कथा रूपी अमृत को कोई यदि पान करे वो क्या होगा? अमर बन जाएगा। ये तब कथामृतम तप्त जीवनम। बोले
भगवान की कथा श्रवण करने से आपके समस्त ताप जो है क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हमारी संसार की ताप क्या है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। बोले भगवान की कथा श्रवण करने से जीवों के समस्त ताप क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भी ऋणितम। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग इसी की गुणखान करते, बताते हैं। संत महात्मा में कोई काम नहीं है, साधु महात्मा के काम क्या है, वही काम है भगवान की कथा सुनाओ। है हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, कोई सुनने वाला है तो सुनाओ, है कोई सुनाने वाला है तो उसे सुनो, जिसके श्रवण कीर्तन हो गया। और कोई सुनाने वाला सुनने वाला नहीं है तो क्या करोगे बताओ, क्या करो, मेरे स्मरण करो। तीन है ना, श्रवण कीर्तन और स्मरण, भक्ति का है। कोई अच्छी कथा सुना रहे हैं तो कान खोल करके सुनो, है कोई कथा बोलने वाला है, अच्छी कथा कोई बोलने वाला है बोलो अच्छी बात है। सुनने वाला कोई है तो उसको सुनाओ, कोई बोलने वाला है उसे सुनो। और कोई बोलने वाला सुनने वाला नहीं है तो क्या करोगे, सो जाएंगे हम। बोले नहीं, क्या करो, स्मरण करो। स्मरणम, भगवान की कथा को स्मरण करो बस। इसलिए कहते तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भी ऋणितम। कभी भी माने ब्रह्मा आदि बड़े बड़े ऐसे ऐसे देवता लोग की कवि कहा जाता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भगवान के ऐसे मधुर कथा को जो है सदा सर्वदा क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, सुनाते हैं। तब कथा मृतम तप्त जीवन कवि ऋणितम कल्म साहपहम। कल्मस माने पाप, कल्म शब्द क्या बोला, कल्म से अपहम, समस्त पाप आपका क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, समस्त ताप, समस्त पाप नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध अपराध, पाप पाप बीज, यहाँ तक कि पाप करने की वासना तक भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बोले भगवत कथा में इतनी शक्ति है, पाप करने की आपकी इच्छा ही नहीं होती। बोले भगवत कल्म साप श्रवण मंगलम। बोले भगवान की कथा में इतने पवित्रता है, सब कुछ मंगल हो जाता है। बोले मंगल क्या है, बोले भगवत कथा श्रवण करने से तुम्हें सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। यदि भगवान का भगवत कथा यदि श्रवण करो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। है मंगल पवित्र कहा जाता है, ऑस्पिशियसनेस, समस्त प्रकार की ऑस्पिशियसनेस आ जाता है। यहां तक नहीं कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा है, मुक्ति तक भी तुम्हारे पास आ जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धन संपत्ति जो कुछ भी चाहे वो भी तुम्हें प्राप्ति हो। कल्म श्रवण मंगलम भूमि गृहनंदिते भूरिदा जना। ऐसे कथा को जो सुनाने वाले जो है वो धन्य है। भूरिदा है माने इस कथा को जो दान करने वाले हैं। इस संसार में अनेक लोग अनेक प्रकार के दान करते हैं, कोई वस्त्र दान करते हैं, वस्त्र दान समझते हो, कपड़ा को दान करते हैं, कोई अन्न दान करते हैं। बोले सबसे बड़ी दान कौन सा है, कथा अमृतम, भगवत कथा को जो जगत में प्रचार करते हैं, सुनाते हैं। इसलिए राधा जी का गे तब कथामृतम तप्त जीवनम कविरीडितम कल्मषावपम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि ते भूरिदा जना। बोले भगवत कथा ये अमृत है, किंतु देखो इस कथा को बाजी दान को जो है लेने वाले बहुत कम है। कौन लेंगे?
मायामय संसार है। जीव इस संसार में दूसरी वस्तु की खोज कर रहे हैं और जिसको लेने से दुख प्राप्ति होता है, किंतु भगवत कथा रूपी महामूल्य अमृत धन को कौन लेगा? छोटा सी कथा करके मैं बंद कर देता हूं। काशी में रहने वाले एक शिव भक्त रहता था। शिव भक्त शिव जी की पूजा करता था, निष्काम रूप से शिव जी की आराधना करते थे। नित्य प्रत्यह शिव जी के मंदिर में जाते थे, पानी चढ़ाते थे, बेलपत्ता चढ़ाते थे, जो शिव पूजा आदि करते थे। शिव जी के कभी कुछ नहीं मांगा वो। उनके एक छोटी सी जो है बेटी थी, छोटी सी बेटी है। भाई देखो देखो समय कैसे ना जाने कैसे बीत जाते हैं। 15-20 साल हो गए और उनके अब उनके बेटी के जो है विवाह के समय आ गए। दरिद्र ब्राह्मण था, उसके पास पैसा नहीं था, ना कभी शिव जी के कुछ मांगा ना कुछ, निष्कपट रूप से शिव जी की पूजा करता था। इतने समय उनके बेटी के शादी के लिए पैसा चाहिए है। अरे समझ में है? इंडिया में विवाह के लिए देखो मैं क्या बताऊं है, अपने बेटी के लिए कितना पैसा देना पड़ता है? लाखों रुपया करोड़ रुपया देना पड़ता है। कपड़ा चपड़ा सोने दाने खाना पीने क्या क्या खर्च होता है। आप लोग को अनुभव है कि नहीं है? पैसा खर्च होता है कि नहीं होता? हाँ। तो उनके बेटी के शादी के लिए पैसा तो नहीं, गरीब ब्राह्मण था और शिव जी के पास प्रातः काल में शिव जी के जल चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया, बेलपत्ता चढ़ाया और यही मांगने लगे, शिव जी मैं तो आपको कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु आज मेरा जरूरी है ये है, मेरे बेटी के शादी के लिए कुछ पैसा चाहिए, मुझे कुछ पैसा का बंदोबस्त कर दो है। शिव जी साक्षात प्रकट हो गए। देखो निष्काम भक्त के पास भगवान भक्त है, शिव जी कैसे विचार करने लगे, ठीक है जाओ वृंदावन में चले जाओ, जमुना के किनारे में है सनातन गोसाई नाम से एक संत महात्मा है वहां पर, उसके पास बहुत धन है, वो तुम्हें दे देंगे और तुम्हारी बेटी की शादी के लिए तुम बहुत धूमधाम से कराना, शादी कराना। देखो प्रातः काल में ब्राह्मण सब कुछ छोड़ करके धन की आशा के लिए वृंदावन की ओर चले गए। चलते चलते जमुना के किनारे पर पहुंचे, कोई ब्रजवासी के पूछा जो यहाँ पर सनातन गोसाई पाद कौन है? तो कोई ब्रजवासी ने कहा हाँ यहाँ पर एक बड़े बाबा रहते हैं। सनातन गोस्वामी के ब्रजवासी लोग सब क्या बोलते थे? बड़े बाबा कहते थे। ब्रज की भाषा, साधु के ब्रज के में क्या बोलते हैं? बाबा जी बोलते हैं। बोले हाँ यहाँ पर बाबा जी बड़े बाबा रहते हैं। देखो सनातन गोस्वामी पाद समस्त ब्रजवासी के साथ इतने हिल मिल करके रहते थे, समस्त ब्रजवासी लोग सनातन गोस्वामी पाद के बड़े बाबा कह के पुकारते थे। तो कोई ब्रजवासी ने कहा जी हाँ सनातन गोस्वामी नाम से एक बड़े बाबा यहाँ पर है विराजमान, जमुना के किनारे में मदन मोहन घेरा वहां पर रहता। देखो शिव भक्त चले गए और जाकर के देखा वास्तव रूप में एक संत महात्मा, बहुत दुबले पतले थे, हाँ शरीर में केवल हड्डी हड्डी और कपड़ा ही छोटी सी कपड़ा लंगोटी पहने हुए बैठे थे। हम लोग इस संसार में साधु किसको मानते हैं? जो मोटे छोटे होगा है, जिसका पेट सबसे बड़ा हो, है, भजन करे अथवा नहीं करे, तुलसी की माला ये से लगा ले, 5 किलो तुलसी की माला लगा ले, बड़े बड़े जोटा होते हैं ना, जोटा ड्रेडलॉक्स हो ऐसे करके बांध के फैला करके रखे तो है, उसके कहा जाता है हाँ ये सबसे बड़ा साधु है, सिद्ध महात्मा है। और यदि वो वहां पर लिख दिया ये बिल्कुल क्या है, सिद्ध महात्मा है,
और 2-4 चेला भी यहाँ पर रहता है। अरे देखो ये सिद्ध महात्मा है, इसके चरण छूने से तुम्हारे सब कुछ हो जाएगा बस। हाँ भाई जाओ भाई, वो सब लगा रहते ना संत महात्मा वहीं पर, उनके जो है चेला लगा रहता है। किस लगा रहता है ना, कमीशन में लगा रहता है। बोले भाई तू यहाँ पर लोग आएगा ना, बोल देना ये सिद्ध महात्मा है, इसके चरण छूने से तुम्हारे सब हो जाएंगे। तो लोग चरण छूता है, और जितना भी पैसा तो लोग कहते हैं हम पैसा नहीं लेते, पैसा छूते नहीं, बांधते हैं। और उसके चेला लोग क्या करते हैं, सब पैसा को इकट्ठा करके फिर रात के समय जब चले जाते हैं ना, तो क्या होता है 60% और 40% होता है। 60 और 40 डिवाइड हो जाता है। तो साधु आप है, आप 60 ले लो, और मैं आप लोग के लिए, आपके लिए इतने जो प्रचार किया, मुझे कितना होना चाहिए 48, बस 42। लोग उसके साधु मानते हैं। कि देखो सनातन गोस्वामी बात कैसे संत महात्मा है, कैसे संत महात्मा थे, बिल्कुल है आसक्त के रहे हैं। देखो तब उसके पास गए और जाकर के बोले, संत महात्मा शिव जी मुझे भेजे हैं, मुझे कुछ धन चाहिए मेरे बेटी के लिए। संत महात्मा इस सनातन विश्वास सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। और शिव जी तुम्हें भेजे है। देखो हमारे सनातन गोस्वामी पाद शिव जी के प्रति कितने प्रीति रखते थे। जहां जहां पर सनातन गोस्वामी पाद रहते थे, वहीं पर साक्षात शिव जी वहीं पर रहते थे। सनातन गोस्वामी वृंदावन में भजन करना शुरू किया, तो नित्य प्रत्यह सनातन गोस्वामी गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आते थे। एक बार सनातन गोस्वामी तबीयत ठीक नहीं हुए और जा नहीं पाए, तो शिव जी गोपेश्वर महादेव सनातन गोस्वामी के दर्शन करने के लिए आधे रास्ते में आ गए। उसी कहा जाता है बनखंडी महादेव। क्या बोला, बनखंडी महादेव। देखो शिव जी गोवर्धन में जाकर सनातन गोस्वामी भजन करने लगे, हमारे शिव जी वहीं पर भी विराजमान है। देखो बहुत कथाएं हैं। तो चलो शिव जी के नाम सुनते ही हमारे सनातन गोस्वामी पाद प्रसन्न हो। शिव जी तुम्हें भेजे हैं धन के लिए। बोले हाँ जी। सनातन गोस्वामी पाद बोले जाओ जमुना के किनारे में, वो जहां पर कूड़ेदानी होता है ना, डस्टबिन, जाओ वहीं पर एक परसमणि रखा है, उसको लेकर जाओ। परसमणि समझते हैं, ये लोहे के पर्स करा देने से क्या बन जाता है, वो सोना बन जाता है। जाओ तुम्हारी लड़की के शादी कराओ, धूमधाम से शादी कराओ। देखो वो ब्राह्मण, शिव भक्त ब्राह्मण कूड़ेदानी से ऐसे देखा तो एक पर्स पत्थर में लिया, एक छोटा सा लोहा के स्पर्श कर दिया, देखा क्या हो गया, वो बहुत प्रसन्न हुए, बस लेकर के चलने लगे। किंतु देखो चलते चलते आधे रास्ते में उसके मन में एक विचार हुई। इसे कहा जाता है गुरु कृपा, भगवत कृपा। क्या विचार हुई, ये देखो ये संत महात्मा ये परस पत्थर के फेंक करके, परस पत्थर के फेंक करके, और कौन सा वस्तु धन के लिए वो बैठे हुए हैं। आपको यदि परस पत्थर मिल जाए, आप कोई काम करोगे? जरूरत नहीं है। एक एक लोहे के टुकड़ा को निकालो और लगा दो, स्पर्श करा दो, बस सोना मिल जाए। एक साथ में करो तो पुलिस आके ले चले जाएंगे, हैं? सरकार के लोग आके ले चले, ठीक है कि नहीं है? तो बुद्धिमान लोग क्या करेंगे, हैं? छुप छुप करके, हैं? थोड़ा थोड़ा लोहा के एक दिन स्पर्श करो, आप जो दुकान पर बेचते रहो, हैं? बड़े देखो इसलिए कार्य ब्राह्मण मन मन विचार करने लगे, ऐसे राजा महाराज की भी दुर्लभ वस्तु जो सब चाहते हैं, परस पत्थर, और ऐसे परस पत्थर के फेंक करके कौन सा धन के लोग बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं।
सब कुछ त्याग दे करके कौन सा धन के लिए वो तपस्या कर रहे हैं। फिर लौट करके आ गए, आकर के सनातन गोस्वामी को पूछने लगे, महाराज आपकी एक बात पूछने में भूल गया। बोले क्या? ऐसे जो परस पत्थर राजा जी महाराज के भी दुर्लभ है, चाहते हैं, ऐसे परस पत्थर के फेंक करके कौन सा धन के लिए आप भजन कर रहे हैं, ये मुझे बताइए। है तब से सनातन गोस्वामी पाद कहने लगे, देखो जो धन प्राप्ति करने से जीवों के सर्वांत रूप में सर्व प्रकारेण समस्त प्रकार के सुख मिलता है। बोले वो क्या चीज है? बोले भगवत प्रेम। किसी के भगवत प्रेम हो जाए बस उनकी सर्व सुख प्राप्ति हो जाता है। बोले वो कैसे है, कैसे मिलेगा? बोले देखो ये हरिनाम रूपी है चिंतामणि, ये नाम करने से आपके सब सुख प्राप्ति होगा। ये परस पत्थर जो दिया आपको, ये लोहा सोना बन जाए, किंतु ये भी दुखदायी है। किंतु देखो हरिनाम रूपी चिंतामणि किसी को प्राप्ति हो जाए तो उनके जीवन में सुख सुख है, अनंत काल के भगवत धाम में चले। तो उस समय वो ब्राह्मण ने क्या कि वो परस पत्थर को फेंक दिया और सनातन गोस्वामी बोले, प्रभु आप मुझे वही चिंतामणि मुझे दीजिए। बोले वो क्या चिंतामणि? हरिनाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही शिक्षा है। सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? क्या धन बताए? हरिनाम है। गृह में, घर में रहे, बाहर में, कहीं भी रहे, गृह वा वन तथा के हा गौरांग बोले डके नरोत्तम मागे तार संग, कहीं भी रहे किसी अवस्था में तो भगवान के नाम रूपी चिंतामणि के जो है आप साथ में रखे, मैंने भगवत नाम जप करते रहे। देखो उसमें आपके क्या मिलेगा? सुख और शांति। तत्प्रसादम परम शांति त्वमेव शरणं गच्छ। गीता में भी लिखा है भगवान की कृपा वही शांति है, उसी से हमें मंगल होगा है। इसलिए सभी लोग क्या करें? हरिनाम करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे
Maharaj ki No, which daughter Oh, हाँ. to pick the first grandson? Krishna, Yeah? Huh? मेन सेरेमनी हाँ, okay, यहाँ okay. करेंगे. हाँ? अरे इधर ले आओ सबके सामने ले आओ पकड़ने का सेरेमनी. किताब हाँ? आ जाओ स्वीट राइस यू हैव स्वीट राइस मीठा भात. आ जाओ इधर बैठ Come on. Come on. Didi, Didi, you can place that in this place. इधर Come on. हाँ? it's okay. खाई दे दो आपको हाँ Come on. Come on. Put the sound. रोहन थोड़ी बता दिया Yes, it's inside. भूल लगा ना remove oh don't cry remove जगा देंगे. अच्छा अच्छा फूल कर दो Okay. अच्छा सबके हाथ में फूल दे दो बोलो ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो देविव चक्षुरादतं नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम स्वस्ति नो गोविन्द स्वस्ति नो भो भागवतो ददातु माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधवं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव जेषां इन्दिरवर श्यामो हृदस्तु जनार्दन ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम सर्वमङ्गलं भवतु तमसो मा ज्योतिर्गमय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अच्छा लाइट नहीं है कुछ नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा अभी लेके आ रहे हैं. Light है. Lamp on the telephone. Flashlight. I have one here. Can you open this? I have one here. बोलो ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो देविव चक्षुरादतं नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम श्री विष्णु अच्छा बोलो फादर मदर से बोले मामा पुत्री करियर नेम वृंदावनी हृदय शुभ अन्नप्राशने विनियोग ओम श्री विष्णु ओम प्रजापति विष्णु ऋषि जाति छंद श्री विष्णु देवता प्रयोगे विनियोग ओम प्रजापति विष्णु ऋषि बृहति छंद श्री अच्युत देवता कुमारी वृंदावन महाप्रसाद अन्नप्राशने विनियोग ओम अच्युत अन्नपते अन्नस्स नो देहि अवनस्स सुस्मिन प्रजातां तारिस ऊर्ज नो देहि द्विपदे चतुष्पदे
स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद श्री विष्णु देवता प्रयोगे विनियोग श्री जनार्दन देवता कुमारी वृंदावने महाप्रसाद अन्नप्राशने विनियोग ओम जनार्दन अन्नपते कृणुत अन्नं नो देहि विजुषाक्तं ते अंग जत जत जुगे नो देहि द्विपदे चतुष्पदे स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा देन फादर ओम प्रजापति टेक दिस ओम लिटिल ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद श्री लक्ष्मी नारायण देवते कुमारी वृंदावने महाप्रसाद अन्नप्रसन्न प्रयोगे विनियोग ओम लक्ष्मी नारायण अन्नपते अन्नं अमृतं नो देहि कमलास संस्कृतं ते भुक्तं शेषं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओके फोर्थ anyone your relative can do ओम ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद श्री जग देवता कुमारी वृंदावन महाप्रसाद अन्नप्राशने विनियोग ओम अन्नपते जग्गं अन्नं अधिजग्गं तदियं नो देहि सर्व सुदुर्लभं मानुषं वै सुधा जुतं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे स्वाहा ओम उदनाय स्वाहा She's awake. then fifth This one? or anyone ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद श्री जनार्दन देवता कुमारी वृंदावन महाप्रसाद अन्नप्राशने विनियोग ओम अन्नपते जनार्दनं षडरसं समं अमृत सिक्तं निवेदितं ते सदन्नं नो देहि देहि किलमिषापहं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे स्वाहा ओम वनाय स्वाहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण एक थाली में लिया कुछ क्या बोले Plate. हाँ? गीता रख दो कलम रख दो कुछ रख दो देखो उनके टेस्ट क्या लगता है हाँ? गीता पकड़े अच्छी है हाँ? हाँ, ये पढ़ You want to see? अरे रख दो वो है
ओके गुड प्रेमानंद हॉलैंड में केवल स्वीडन में सब गीता पढ़ गया है अच्छा सब प्रसाद दे